Now that's the first application of integration. Equation of the curve. पहले क्या होता था कि y equals to f of x होता था, तो आप डिफरेंशिएट करते थे तो dy by dx यानी f bar of x बन जाता था. अब मुझे वापस आना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इंटीग्रेट करूंगा. सो पहले हम ग्रेडियंट ऑफ द कर्व निकाल रहे थे, अब हम ग्रेडियंट ऑफ द कर्व को इंटीग्रेट करेंगे टू क्रिएट द equation of the curve. We get to find the equation of the curve that passes through the point this and where dy by dx is this. तो मैं dy by dx से लिख लेता हूँ. अब उस पॉइंट का क्या काम है वो अभी हम देख लेते हैं. मेरा पहला सवाल है इसको इंटीग्रेट करना, उसके ही असल मार्क्स है मेरे पास. तो बन गया y, इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए. What simplification do I need to do before I can integrate? सर सेपरेट डिनोमिनेटर ले लो. सेपरेट डिनोमिनेटर करना पड़ेगा. मैं सेपरेट डिनोमिनेटर करूंगा, x पावर हाफ इसके साथ भी और x पावर हाफ इसके साथ भी. अभी तक मैंने इंटीग्रेट नहीं किया, इसलिए इंटीग्रेशन का साइन आपको नजर आ रहा होगा. यहाँ पे पावर हो गई है 2 माइनस हाफ और यहाँ पे हो गई है x माइनस हाफ. अभी भी मैंने इंटीग्रेट नहीं किया, मैं सिर्फ पावर्स को बैलेंस कर रहा हूँ. 3/2. क्या हो गया वलीद को, बार बार आ जा रहा है वो. अब मैं इंटीग्रेट करूंगा. 3/2 प्लस 1 तो डिवाइड बाई 5/2 हो गया, प्लस माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई हाफ प्लस c. सही है. when I talk about the equation of the curve, this is not the specific equation of the curve. I need to find a specific equation of the curve. तो मैं आपसे क्या कहूंगा कि आप c की वैल्यू भी ढूंढें. c की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, दैट इज वेयर दिस पॉइंट कम्स इन. कि आप x की जगह -1 और x की जगह 4 और y की जगह -1 लगाएंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी. सो -1. अब आप देखिए मैंने इसको barely simplification कोई की है. Why am I doing such a thing is because I want to put this entire thing on a calculator and calculate in one go rather than trying to split up numbers and doing calculations manually. मैं सिर्फ जो है वो powers को simplify कर रहा हूँ यहाँ पे so that they're easy to put on a calculator, and I'm going to calculate C directly. Can someone put this on a calculator and get me the answer for C? मैं इसको बाद में simplify करके भी दिखाऊंगा. It's not something that I won't do, but I want an answer, please. 64, 64 and 468. Is that the answer? Okay. So Walid is telling me that my answer is correct. So what is the final equation of the curve then? Equation of the curve जो हो जाएगी वो ये हो जाएगी. Y equals to 5x power 5/2 over 5/2 plus x power half over half minus 69. Okay. If I want to simplify this, I can again simplify this. 5 divided by 5/2 करना है. I can also put this on a calculator. तो याद है कि 2x power 5/2. Now this is
up to you if you want to do it. The examiner does not look for this answer. The examiner just looks for an equation of the curve, be it in any format, generally. सर तो उसे zoom out करें. एक मिनट. सही है. Thank you. Okay. Can you now try this one out for me? Try this please and tell me the answer. Four x plus 3. Yes, C is 3. Asad. So yeah, that's the solution for this. Are we all clear on this? सही. दिस इज सिमिलर क्वेश्चन. आप देख लें मार्क्स कितने होते हैं. 5 मार्क्स होते हैं. सही है. मैं जल्दी से इसको भी सॉल्व कर देता हूँ सिंस दिस इज अ पास्ट पेपर स्पेसिमेन क्वेश्चन है. I'm going to quickly solve this. You have to tell me if you have trouble. I can explain it in detail if you want. But the first half of the class has to go into solving equations of the curve. So you're done with the first application, then we'll do the next application in the next half. Half into what? Half into 6. 1. 1. सही है. x plus 6 का डिफरेंशियल जो होगा वो 1 हो जाएगा. ओके. एंड अब ये इस फॉर्मेट में दिया हुआ है. यहाँ पे हमें पता है x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 है. तो मैं लिखूंगा 3 plus 6. यहाँ पे 2 आ जाएगा हाफ इंटू 1 की वजह से. ये -6 है. तो ये बन रहा है 236 -2 प्लस c. सही है. तो f of x बन गया है 2x plus 6 power half -6 over x
-3. सही? Any confusions? Any trouble? I hope the first application is clear to everybody. I think that we have a few more questions to go though. काफी है भाई. Oh wow, I didn't know. चल करते हैं, कोई बात नहीं. जल्दी करते हैं because we'll run out of time. Okay, you get that curve has the equation this, given that this, the point A is the only point at the curve at which the gradient is -1. Find the x coordinate of A. What is this first question asking you? Is it integration? Is it integration? Or is it something else? सर ये तो डिफरेंशिएशन लग रहा है. ये differentiation है क्यों? क्योंकि gradient of the curve की बात हो रही है, f bar of x की बात हो रही है. Saying the gradient is -1. So what I'm going to do is I'm going to write f bar of x. मैं इसको लिख लेता हूँ 3 root x because I want to solve an equation in algebra. और f bar of x की जगह मैं लिख लेता हूँ -1. ये differentiate तो हुआ है ना पहले से. क्या करना चाहिए? रूट x को कॉमन डिनोमिनेटर ले लेना चाहिए. ये बन जाएगा 3x - 2 equals to -1. सही. And I get -√x equals to 3x - 2. What should I do next? What should I do next? Why डिस्गाइज क्वाड्रेटिक बनेगी. हाँ, मैं basically रूट हटाने के लिए I will square both sides. And I get माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाएगा. यहाँ पे आ जाएगा 9x square minus 12x plus 4. You see how topics are coming together now? Very rarely will you see on the exam के differentiation integration का question जो isolated हो. They are usually put together. Can someone tell me the values of x using a calculator, please? कोई बता दो please. 1. सर 1 और 4/9. सही है. अच्छा, अब सवाल ये है कि भाई इसमें से कौन सा आंसर है? उसने तो कहा था find the point A is the only point. So what do I do? सर एक्स पुट करके देख ले. एक्सपोर्ट करके देख लें कि किससे जो है वो ग्रेडियंट -1 आ रहा है, किससे नहीं आ रहा. इससे 1 आ गया तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा. सही है. और इससे जो है वो -1 आएगा आई थिंक. सो दैट इज योर आंसर देन. ओके, यू हैव टू बी केयरफुल. ये देखें, ये 3 मार्क का है तो 1 मार्क जो होगा वो फाइनल आंसर देने का होगा, क्योंकि 1 मार्क सिर्फ क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का है. ओके, फिर वो कहता है कि given that the curve also passes through the point 4,10, find the y coordinate of A, giving your answer as a fraction. मुझे y coordinate निकालना है. इसके लिए पहले मुझे क्या चाहिए होगा? If I want the y coordinate, what would I want first? ई चाहिए होगा और एक्स. मुझे इक्वेशन ऑफ द कर्व चाहिए होगी, तभी उसमें से y आ सकता है. अभी तो y आ भी नहीं सकता, y f of x होता है, तो y आ भी नहीं सकता. तो मैंने कहा y निकालने के लिए जो है वो मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ. 1/2 + 1 बन जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2.
ये बन जाएगा माइनस हाफ प्लस 1 विच गिव्स मी हाफ प्लस सी। अब उसने क्या बताया हुआ है कि इट ऑल्सो पासेस टू द पॉइंट 4, 10। तो मैं यहाँ पे 10 लगाऊंगा। किसी को कंफ्यूजन है तो प्लीज साथ साथ पूछें। सर ये आपने ऊपर जो डिफरेंशिएट कब करा है, क्या कौन से पॉइंट से? मतलब ये ऊपर वाला है, इसमें डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट तो हुआ आपने जो हुआ है, करा है डिफरेंशिएट तो हुआ हुआ तो था, ऑलरेडी वो, अच्छा सही है, इसीलिए तो इक्वेशन निकलवा रहा है वो। अच्छा सही है। कोई जरा सी बता दो मुझे, लंबी कैलकुलेशन है। 2 times 8 16, 16 minus 8 8 और 2। तो अब मेरे पास इक्वेशन बन गई, इक्वेशन बन गई है y इक्वल्स टू 3x पावर 3 over 2 over 3 over 2 minus 2x पावर हाफ ओवर हाफ प्लस 2। सही है। अब मुझे सर आप 3/2 क्यों नहीं काट रहे? कर रहा हूँ एंड में सिंप्लीफाई करता हूँ। 2 बन जाएगा। जी सर। ओके, अब क्या करना था, y कोऑर्डिनेट ऑफ a निकालना था ना, तो मैं क्या लगाऊंगा, x की वैल्यू 4/9। Again, I'm going to put this entire thing on a calculator. I'm not going to solve manually to find the y coordinate. Can someone tell me the answer then? सर 10 आ रहा है। 10 और है 10 नहीं आ सकता भाई। 10 श्योर? नहीं सॉरी, मैं गलत वो प्लान कर दिया, एक सेकंड। तुमने 4 ही लगा दी। सर ये कह रहा है y इक्वल्स टू 0। जी है 0 आ रहा है। जी क्योंकि सर जब हम 1 डाल रहे हैं, अच्छा 1 तो डिस्कार्ड हुआ है। 1 तो लगा ही ना, 4/9 लगाओ ना बस। लिखा था मैंने बोर्ड पे। सर वो दिखा नहीं था। -0.074। फ्रैक्शन बताओ ओवर। सर वो खाली डेसिमल फॉर्म में ही आ रहा है, फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट हो रहा। चलो -0.074। आगे कुछ है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स देने होते हैं। नहीं सही है आगे 0 ही है। ओके, ये देखते हैं क्या सवाल है। ये कहता है curve is such that the double differential -6x and the curve has a maximum point at 1, 2. Find the equation of the curve. और हमें पता है कि हम जो है वो y को डिफरेंशिएट करके dy by dx पे पहुंचते हैं। डबल इंटीग्रेशन करेंगे सर। डबल इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। सही है, हम डबल डिफरेंशियल पे पहुंचे हुए हैं, तो 2 दफा वापस आना है। सही है, पहले यहाँ से यहाँ पे वापस आना है और फिर यहाँ से यहाँ पे भी आना है।
Okay, so I write down my expression first and then I integrate. सही, the left hand side becomes dy by dx. ये बना minus 6x square over 2 plus c. Now before I integrate again, मुझे ये c ढूंढ लेना चाहिए ना? कैसे ढूंढूंगा? सर ये मैक्सिमम पॉइंट जो दिया हुआ है आपको ये मैक्सिमम इनको पॉइंट दिया करना हुआ है, x की वैल्यू 1 दी हुई है और y की वैल्यू 2 दी हुई है, तो क्या करूं वरीब? x की वैल्यू तो 1 लगा दी, यहाँ पे क्या सर लिखूंगा? इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0 लिखूंगा, क्यों? मैक्सिमम पॉइंट है। तो ये स्टेशनरी पॉइंट है बेसिकली, मैक्सिमम भी स्टेशनरी होता है, तो स्टेशनरी पॉइंट है इसलिए 0 आ रहा है। मैक्सिमम की एज सच यहाँ पे कोई इंटरप्रिटेशन है नहीं, इट जस्ट मींस दैट इट्स अ टर्निंग पॉइंट और अ स्टेशनरी पॉइंट। ओके, सो आई गेट माय आंसर। तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया? एक गया -3x² प्लस 3, तो इसको दोबारा इंटीग्रेट करता हूँ, ये बना y -3x³ over 3 प्लस 3x प्लस, मैं कांस्टेंट का नाम चेंज कर रहा हूँ जस्ट टू शो यू दैट इट्स अ डिफरेंट कांस्टेंट। सही है, जस्ट टू शो यू दैट इट्स अ डिफरेंट कांस्टेंट। अब मैं y की वैल्यू 2 लगाऊंगा और x की वैल्यू 1 लगा दूंगा। जीरो, सर डी 0 हो गया। सही है, कोई बात नहीं, डी होने से 0 हो गया। सो आई गेट -x³ plus 3x. That's my equation of the curve. Does everybody understand all of this? Are there any questions? सर इक्वेशन को इंटीग्रेट करके पॉइंट्स डाल के सी निकालते हैं या जो मतलब जो dy ओवर dx होती है उसी से आती है? dy by dx को इंटीग्रेट किया तो इक्वेशन आया, इक्वेशन में फिर वैल्यूज इंसर्ट किया मैंने। यहाँ पे देखो dy by dx भी यूज किया था, क्यों? क्योंकि वो डबल डिफरेंशियल दिया हुआ था ना। ये दो स्टेप वाली थी, तो एक दफा dy by dx को भी यूज करना पड़ा। यहाँ पे 0 इसलिए लगाया बिकॉज दिस वाज अ स्टेशनरी पॉइंट, ये 1 जो था वो स्टेशनरी पॉइंट। सर तो ठीक है सेकंड सर। वाले में भी स्टेशनरी था। मैक्सिमम लिखा हुआ है ना। नहीं तो सेकंड में जो हमने 2 डाला है हाँ, वो भी तो y की, स्टेशनरी पॉइंट में ही आएगा। वो तो y की वैल्यू है। अच्छा हाँ सही है, वो तो इक्वेशन आ गई। सही, वो तो x और y की वैल्यूज हैं, और यहाँ से मुझे पता चला dy by dx 0 है। सही है। क्लियर? Okay, then you can have questions that have differentiation and integration together. अब जैसे पास पेपर का क्वेश्चन है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इसलिए मैं अभी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, देन वी आर गोइंग टू टेक अ ब्रेक एट 9 o'clock. ये कहता है P is a point, the normal to the curve at point P meets the coordinate axis at Q and R, find the coordinates of the midpoint of QR. तो अगर आपने नॉर्मल टू द कर्व निकालनी है तो आप तो डायरेक्ट इसे डिफरेंशियल से ही स्टार्ट करेंगे। सही है, आपको पॉइंट भी दिया हुआ है, तो हम कहेंगे dy by dx किस पे निकालना है? x इक्वल्स टू 1 पे निकालना है। टू, दैट इज द ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट।
Gradient of normal. Minus half. Say this is something that is from before. हमने पहले भी किए हुए हैं सवाल. अब वो क्या कहता है कि it means the coordinate axis at Q and R. इसका मतलब एक दफा वो x इंटरसेप्ट निकालना है, एक दफा y इंटरसेप्ट निकालना है. x इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? y को 0 करना पड़ेगा. So एक पॉइंट मेरे पास आ गया 17,0. Let's call that Q. Y intercept x is 0. सही है ये. I think everybody should be comfortable with this. Okay. Then the next part says find the equation of the curve. तो आपको नजर आ रहा है सिंपल वाला, फिर से सिंपल ही है. It's not a difficult thing. मैं इसको पहले लिख लेता हूँ. 4 6 minus 2x power minus half. Then I integrate on both sides. 4 अपनी जगह, नई पावर से डिवाइड इनटू 2 -2. -2 सही है. तो इक्वेशन बन गई -4 6 minus 2x power half प्लस c. कौन सा पॉइंट इंसर्ट करूंगा? उसके पासेस थ्रू p है, तो p की वैल्यूज इंसर्ट करेंगे. 8 6 minus 2 into 1 half plus c. 4 into 2 8 8 plus 8 16. So equation of the curve is y equals to -4 6 minus 2x power half plus 16.